Welcome to the Simply Living podcast. I'm Anant Mundra, and today I'm super excited to have a conversation with a distinguished doctor who has the experience of more than 20 years and has motivated over 2 lakh people to make positive lifestyle changes. He's acclaimed for his storytelling and poetry that effectively conveys the principles of healthy living and sustainable happiness. He is India's pioneering health entertainer, family physician, weight loss and lifestyle expert, wellness coach, and fitness trainer, and an author of the book Spark of Life and Head to Toe. He has conducted healthy living seminars live for Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Mumbai, CA Association of India, GST Department of Surat, Airport Authority of Surat, Surat Marshal Association, and many more. He is a family doctor for more than 1,000 families of Surat and guided many on lifestyle and weight loss. Please join me in welcoming Dr. Mukesh Parashar to the podcast. Welcome, sir, to the podcast. Thank you so much, Anand, for your kind introduction. Thank you, sir. So, it's very nice. First time I'm participating in such a program. Then, very young kid like an anchor is hosting the show. So now it's your turn. Your questions, please, and I'm try my best to fulfilling all your expectations so far as health and mental health are concerned. Thank you, sir. Let's start. So, I would like to ask you my first question, sir. Can you tell the audience a little bit about your background and your journey into medicine? Actually, my background is a little bit quite interesting in such a way. My father was a naturopath, and my grandfather was in Ayurveda, and my real brother was the football team captain of Rajasthan thrice. Oh, So, overall fitness, I belong to a fitness family. So I got fitness and healthy lifestyle in my genetics. मुझे विरासत में मिला और I try to mix that concepts of healthy lifestyle with the modern medicine. And when I saw that the people of India, they are from the last 20-25, they are changing their lifestyle in such a way that we are having a boom or we are having a tsunami of lifestyle related disease right now India is facing, because the 80% diseases in India are the lifestyle related disease. In a nutshell, if we want to clear more, the thing is, these diseases are not actual diseases. We are nurturing them, we are developing them. हम खुद उन्हें अपनी बुरी आदतों से पैदा कर रहे हैं. So that I decided to cover the audience, cover the nation with the tips of healthy lifestyle. And because I'm bass singer of the college, mouth organ player, so cultural activity or my extracurricular activity always plays a significant role in my live shows. So audience likes me, audience loves me. That's why I'm in the field of preventive healthcare, and so how the journey goes on. डॉक्टर की जर्नी मालूम पड़ गई, बट हाउ वाज आप इंस्पायर कैसे हुए कि स्पीकर की तरह आप मोटिवेट करेंगे लोगों को एक स्टेज पे आके? That is true. It was always my habit whenever patient comes to my clinic. It was my habit कि patient कभी भी आए तो हम उसे डिटेल डिस्कशंस डिजीज़ का करते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि पेशेंट आया, उसने अपनी कोई कंप्लेन रखी और हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और वो चला गया. नो, हमेशा हम उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, फिर डिजीज़ का रूट हम आइडेंटिफाई करते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड द मेन डायग्नोसिस इन द मेडिकल साइंस, कि जब तक आप उसका रूट कॉज नहीं पकड़ेंगे, यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट completely. Okay, so it was my habit. So there is a one very gentle family from Surat only. They are very a good family friend of mine also. They are the Poddas Rachit group. Okay. So they came to my clinic, Pramod ji and his wife Babita ji Poddar. And 5 years back, they were organizing a program of Better Together. Better Together. So journey started from there. So first time they came to my clinic and said, sir, एक program organize किया है, you have to speak upon healthy lifestyle. तो मैंने कहा मुझे बोलना है. तो they said yes, आपको बोलना है. तो मैंने कहा, मैंने इनोसेंटली बोला क्या बोलना है. तब उनका जो रिप्लाई था वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और क्लियर था
कि सर जो आप चैम्बर से बोलते हैं अब टाइम है कि उसको स्टेज से बोलिए. So that was the first program in 2019, Better Together in Surat only. That day, I got a confidence कि शायद I should speak upon common public. मुझे बोलना चाहिए, मुझे स्टेज पे आना चाहिए. और क्योंकि लोगों को वो अंदाज़ पसंद आया कि सब्जेक्ट को, एक मेडिकल बोरिंग सब्जेक्ट को मैंने एंटरटेनमेंट के ज़रिए डिलीवर करने की कोशिश की है फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स. तो ऑडियंस इज़ लाइकिंग, उनको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं. सर मैंने भी आपका सुना, बहुत अच्छा लगा. मम्मी ने मेरे को दिखाया था वीडियो में. राइट. आप पोइट्री अलग अलग डॉक्टर पाराशर और उसके ऊपर, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मोबाइल से निकलो, वीडियो चलता जा रहा है, एक एक करके क्लिप देखते जा रहे हैं. ट्रू. एक्चुअली एक स्पीकर की ड्यूटी होती है कि जब कभी भी वो प्रोग्राम करे तो वो ऑडियंस को एंगेज करे. Yeah. मैं ये नहीं कहता, स्पीकर्स बहुत होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, पर और बहुत नॉलेजियस भी हैं. इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री कि इतने लोग आपको मिलेंगे यदि जब आप आगे बढ़ेंगे. पर एक चीज़ कॉमन स्पीकर्स में होती है, होनी चाहिए, वो उनका एक पहला कैरेक्टर होना चाहिए कि हाउ टू एंगेज द ऑडियंस, हाउ टू एंटरटेन द ऑडियंस. आप में वो गुण सबसे पहले चाहिए कि आप ऑडियंस को बांध के रख सको. तो ज़रूरी होता है कि स्पीकर के लिए कि प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन करे कि ऑडियंस बोर ना हो, वो आपके साथ इन्वॉल्व हो कम्प्लीटली और उस प्रोग्राम को एंजॉय करे और साथ में टेक होम मैसेज भी लेके जाए. तो थिंग शुड बी वेरी क्लियर. और बस मैं यही फोकस करता हूँ. व्हेन आई वाज इन कॉलेज तब भी मेरा टारगेट यही रहता था कि मैं सॉन्ग ऐसा गाऊँ जो मुझे ऑडियंस एंजॉय करे, उनका प्यार मिले, ब्लेसिंग्स मिले. और अभी भी मैं जब स्टेज पर जाता हूँ तो मैं इसी थ्योरी और इसी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूँ कि जब आप बोलो तो दिल से बोलो और लोग आपको सुने, एंजॉय भी करें, और मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए जो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मिले और आप उसे कैरी कर सकें पूरी लाइफ को भी खुशी खुशी से. यस सर. सर अब थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पे चले. ऑफ कोर्स. सर हाउ वुड यू डिफाइन हेल्थ इन अ होलिस्टिक सेंस? In my personal opinion, the definition of WHO is absolutely clear. And every doctor knows the definition of WHO, what exactly health is. Health doesn't mean you are not sick. If you are not sick, doesn't mean you are healthy. Yeah. Health is calculated your overall life, from physical health, mental health, financial health, social health. आपके पास सब कुछ है पर आपको नींद नहीं आती है, यू आर नॉट हेल्दी. आपके पास सब कुछ है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आपको स्लीप भी आता है, पर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, यू आर नॉट हेल्दी. आपका न्यूट्रिशन भी अच्छा है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आपकी स्लीप भी अच्छी है, पर आप समाज को साथ लेके नहीं चलते हैं. सोशली आप बिल्कुल अलूफ रहते हैं, अलग रहते हैं, तो सोशली यू आर नॉट हेल्दी. तो हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. अभी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, और आपने तो बहुत अच्छा टीका लगाया हुआ है. हाँ, तो आप जो एक भारतीय परंपराओं और सिद्धांतों और संस्कारों को साथ लेके चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस तिलक की वैल्यू को कैरी किया है. और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम हर एंगल से हेल्थ को समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ द हेल्थ शुड बी कंसिडर्ड व्हेन अ पर्सन इज क्लेम्ड और टैग्ड हेल्दी. यस सर. आप बता सकते हो ऑडियंस को आप कौन से एसोसिएशन से रखते रिलेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब सोशली किन किन ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव हूँ? ओके. यदि आप प्रोफेशन से बात करेंगे तो मैं सूरत की 3 मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हूँ. बठार घोड़दौड़ डॉक्टर्स क्लब से कनेक्टेड हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कनेक्टेड हूँ, फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन से कनेक्टेड हूँ, और अभी वेसु पिपलो डॉक्टर्स क्लब से भी मैं कनेक्टेड हूँ. तो ये हमारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. फिर आती है हॉबी साइड. मैं बेसिकली सिंगिंग, म्यूज़िक मेरी हॉबी है, तो हम एक क्लब रन करते हैं. दैट्स उसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल्स, ऑफिसर्स और इस टाइप के लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने हॉबीज़ को, शौक़ को बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं. तो सुर संगम सूरत हमारा क्लब है. मैं मेंटर हूँ ऑफिशियली सुर संगम सूरत का. तो काफ़ी अच्छे बडिंग म्यूजिशियंस, यंग सिंगर्स लाइक यू, वो भी हमारे क्लब के मेंबर हैं. तो वो हमारा एक हॉबी क्लब है. और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो हेल्थ में मैं एक फ्रीलांसर हूँ. बिकॉज इन माय पर्सनल ओपिनियन सारे हेल्थ एक्टिविटीज़ अच्छे हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर वेट, व्हाट आर योर फिजिकल लिमिटेशंस, what is the season, and what are your personal interest. These 5 factor decides कि किस इंसान को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए
बिकॉज एक्सरसाइज का टॉपिक शायद बाद में आता, पर मैंने Yes. आपको प्रीवियसली कवर कर दिया। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है वर्ल्ड में जो कंप्लीट हो, जो आप ये कह सके कि नहीं ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो मतलब आपने सब कुछ कर लिया। इट डिपेंड्स ऑन द सीजन, योर एज, वेज, योर लिमिटेशंस, आपकी डिजीजेस क्या हैं, कई बार वो भी डिसाइड करती है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। यू आर ए वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट एंड आई एम वेरी गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन। आप मुझे इंसिस्ट करें सर आप क्रिकेट खेलो, रहे आई एम इंसिस्टिंग दैट यू शुड प्ले बैडमिंटन, तो इट्स मिसमैच। तो सही बात यह है कि आप स्टूडेंट हैं और आपके प्रोग्राम में ज़्यादातर यंगस्टर्स होंगे, तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा, खेलो, अपने पैशन को फॉलो करिए और आप वो खेलिए जो आपके दिल से निकले। Yes. Sir, आपके in your opinion, what are the key components of good health that everyone should prioritize? Okay, there are 5 factors which makes you overall healthy. And how we decide that all the factors are how they are working. The first is healthy eating, which you should learn from the experts rather than social influencers. Clearly बोल रहा हूँ। किसी भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट से किसी चीज़ लर्न करने से पहले उसके फॉलोअर्स नहीं, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। बिकॉज माफिया मेंटोर्स के ज़माने में जिस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, हम ये भूल रहे हैं कि हम जिससे नॉलेज ले रहे हैं उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है। जिसका खुद का बैकग्राउंड हेल्दी नहीं है, जिसका खुद का बैकग्राउंड एकेडमिक अच्छा नहीं है, वो कैसे आपको गाइड कर सकता है? वो गाइड नहीं कर रहा है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो एक्सपर्ट का जेन्युइन डेफिनेशन ये है, वो उस सब्जेक्ट का नॉलेजियस पर्सन होना चाहिए। उसने उस सब्जेक्ट को अपने पैशन से, अपने इंटरेस्ट से, डिग्री से ही नहीं पर कम से कम अपने पर्सनल इंटरेस्ट से 3 साल तक कंसिस्टेंटली फॉलो किया होना चाहिए। तो फिर उसके पास यदि डिग्री नहीं भी है तो वो एक्सपर्ट कहलाएगा। पर यदि जब आप कोई सोशल मीडिया पे कोई रील को रिलीज़ करते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको उसका कंटेंट आपने कॉपी किया हुआ है या किसी और प्लेटफॉर्म पे वो रील बहुत अच्छा रन कर रही है तो आप उसे अपने वर्ड्स में रिलीज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। आपको हेल्थ यदि डेवलप करनी है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो 5 कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट इज हेल्दी ईटिंग विच यू शुड लर्न फ्रॉम द experts, genuine experts, not so-called experts, not social influencers. Second is 10 glass of water per day. 10 glass. 10 ग्लास पानी हर इंसान को पीना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वेट ग्लास का साइज भी चेंज हो सकता है। अभी छोटा बच्चा होगा तो उसको तो बड़ा ग्लास नहीं दे सकते, तो उसका ग्लास साइज छोटा हो जाएगा, पर 10 ग्लास उसके लिए भी कॉमन रहेगा। फिर उसके बाद आता है 7 आवर्स ऑफ स्लीप। हर इंसान को 7 घंटे सोना चाहिए। 7 आवर्स ऑफ स्लीप, साउंड स्लीप यदि किसी को आती है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। बिकॉज इफ द मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब्ड, वो सो नहीं पाएगा। तो हम मेंटल हेल्थ को एनालाइज कर लेते हैं उसकी स्लीप क्वालिटी से। ओके, तो हेल्दी ईटिंग पर बात हो गई, 10 ग्लास ऑफ वाटर पे बात हो गई, मेंटल हेल्थ पर बात हो गई, 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। आपका ये क्वेश्चन शायद बाद में आ गया पर मैं इसको अभी कवर करना चाहूँगा। एक्सरसाइज, जैसे मैंने कि पहले भी बताया, एक्सरसाइज डिपेंड्स ऑन एज, वेट, डिजीज, रीजन, सीजन एंड योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपकी उम्र क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, सीज़न क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि मैं सूरत और गुजरात के सिनेरियो में बात करूँ, चलो सूरत को कंसिडर करते हैं बिकॉज बेसिकली वी आर फ्रॉम सूरत। जो रेनी सीजन है वो रेनी सीजन से शुरू करते हैं। दैट स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ये 4 महीने बारिश के होते हैं। यदि ऐसे में यदि कोई बाहर जॉगिंग करने जाएगा तो ही और शी इज़ इन डेंजर। रेन में आप जाओगे, आपका ये एक्टिविटी कंट्रोल ही नहीं है। साइकिलिंग पे आप जाएंगे, यू आर इन डेंजर। यदि आप आउटफील्ड एक्टिविटी करते हैं तो आप स्लिप हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। कभी रेन इतनी हैवी भी हो सकती है कि आप करें नहीं। इस बार तो जो कहर, जो गदर मचाई है नेचर ने, तो 4 दिन नवरात्रि के लास्ट तो पूरे ही स्पॉइल हो गए। लोग गरबा ही नहीं खेल पाए, सिर्फ जो डोम बेस्ड सेटअप्स थे वहीं पर ही गरबा हो पाया। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो बारिश के मौसम में हमें इंडोर एक्टिविटी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल योगा, जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो हम रिकमेंड करते हैं रेनी सीजन में। उसके बाद आता है सीज़न नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ये विंटर सीजन आता है। विंटर सीजन में हम हमेशा आउटडोर एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं। अपोजिट, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनी स्पोर्ट्स यू लाइक। ये एक्टिविटी हमें सर्दियों में करनी चाहिए। तो चेंज भी आपको मिलता है और प्लस वो नेचर को मैच भी करता है। ओके, एंड दैट उसके बाद आता है अपना फरवरी,
मार्च अप्रैल मई एंड जून, ये जो टाइम है मार्च अप्रैल मई जून वाला, ये है प्योरली समर सीजन, गर्मियों का टाइम। सबको पानी में जाना अच्छा लगता है, स्विमिंग करनी चाहिए। तो हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए। आप पैटर्न देखेंगे कि हमें करना क्या चाहिए, तो इसका जवाब नेचर हमें दे रहा है, पर हम नेचर से लर्न नहीं कर रहे। और जब हम अगेंस्ट द नेचर जाते हैं तब हमें उसकी पेनल्टी लगती है। तो नेचर लग रही है अभी। जैसे लगी रही है, हमने नेचर के साथ जितना खिलवाड़ किया, नेचर के साथ जितनी हंसी मजाक किया, हमने नेचर को सीरियसली नहीं लिया, तो आज नेचर हमें सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं तो अदरवाइज कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में कंप्लीट लाइफ, इंक्लूडिंग माई प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग माई एकेडमिक्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं देखा कि रावण भी भीग जाता है। रावण भीग जाता है? भीग गया ना, कल दशहरा था, इस बार रावण भीग गया। ओह, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि आने वाले टाइम में लोग बोले कि रावण का दहन नहीं, रावण का भी विसर्जन ही करना शुरू करते। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान ने नेचर के साथ छेड़खानी की है। इतने ट्रीज कट कर दिए, पूरे नदियों के रुख मोड़ दिए, अपने हिसाब से हर चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। बादल फटना जैसी चीज़ आज के 10 साल 15 साल पहले कोई सुनता भी नहीं था। अब जिस तरीके से बादल फटते हैं और अचानक से इतनी बाढ़ आती है कि वो संभलती है लोगों से। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं इंसान को अभी भी समय है, समझना पड़ेगा कि हमें नेचर के साथ इसका हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट होता 100%, होगा। आपकी सारी एक्टिविटी, आपके सारे इमोशनल कनेक्ट, आपके सारे फिजिकल कनेक्ट सब ब्रेक होते हैं जब नेचर अपना कहर ढाता है इंसान के ऊपर। तो एक नॉर्मल पर्सन क्या नेचर की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकता है? उससे daily पहले मैं level वो में? 5th एलिमेंट कंप्लीट कर दूं। हाँ, मैंने 4 एलिमेंट आपको बता दिए कि एक्सरसाइज सिलेक्शन में, हेल्दी, ओवरऑल हेल्दी रहने में, हेल्दी ईटिंग आपने सुन लिया, यस, और उसके बाद 10 ग्लास ऑफ वाटर, स्लीप, उसके बाद 7 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज, जिस पे भी कमेंट हो गया, एंड लास्ट इज नॉर्मल वेट। ये फैक्टर इंडिया मिस कर रहा है। यदि हमारे 4 फैक्टर करेक्ट हैं और ये वेट हमारा नॉर्मल नहीं है, ये चारों फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है। लास्ट ईयर, हाँ, यस, वेट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में एलेबोरेट करना चाहूँगा। एक व्यक्ति है, उसका वजन है 60 kg, द सेकेंड वन इज 70 kg, थर्ड वन इज 80 kg, 90 kg, 100 kg एंड सो ऑन। बट वन थिंग इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, ब्लड इज 5 लीटर ओनली। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लोगों को ये बात नहीं पता है। इंसान का वजन 60 किलो हो या 160 किलो हो, ब्लड उतना नहीं बढ़ता, ब्लड ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 5 लीटर्स। तो जब ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो ये कहानी बिल्कुल वैसी है कि यू हैव बीन शिफ्टेड, आप शिफ्ट हो चुके हैं 2 BHK फ्लैट से फार्म हाउस में, पर सर्वेंट एक ही है, ओके, तो मेंटेनेंस आपकी वीक हो जाएगी। तो जब कभी भी हम हेल्थ के इस फैक्टर को मिस करते हैं, तो यदि बाकी 4 फैक्टर यदि हमारे करेक्ट भी, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम हेल्दी ईटिंग भी कर रहे हैं, हमारी साउंड स्लीप भी, हम पानी भी अच्छा पी रहे हैं, पर वेट हमारा यदि 80-90 kg मेंटेन हो रहा है, तो ये चारों फैक्टर को न्यूट्रलाइज करता है। तो आप ओवरऑल हेल्दी नहीं रह सकते इन ए लॉन्ग रन। तो आपको अपना वेट भी अकॉर्डिंग टू द हाइट मैनेज करना चाहिए। अब व्हाट इज़ अ नॉर्मल वेट, तो हर इंसान को सीधे खड़े होना चाहिए, उसका एब्डोमेन या तो चेस्ट के लेवल पे होना चाहिए या चेस्ट से पीछे। दिस इज द सिंपल फार्मूला। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज माय ऑडियंस कि यू शुड नो अबाउट द वेस्ट हीप रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी फैट परसेंटेज। ये सब मॉडर्न मेडिसिन के कंफ्यूजिंग फॉर्मुलेशंस हैं। यदि आप सीधी भाषा में समझते हो, तो मैं सीधी भाषा में एक ही बात कहूँगा, जब इंसान खड़ा होता है तो उसका एब्डोमेन, उसका पेट उसके चेस्ट से पीछे होना चाहिए या लेवल में होना चाहिए। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ रिमेन योर वेट इन विथिन द लिमिट्स। Sir, most of the people know that they have more than the weight recommended, but still they are not able to work upon it. What you would say? बिकॉज वो अभी भी अपने रिजल्ट को ढूंढ रहे हैं डाइट चार्ट्स में। तो आई ऑलवेज सेज द वेट लॉस इज ए साइंटिफिक आर्ट, इट्स नॉट डाइट चार्ट। डाइट चार्ट तो पहले भी थे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए। यदि कोई लो कैलोरी डाइट भी लेता है, पर वो दिन भर सोफे पे लेटा रहता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो रहेगा कि वो 2 चपाती में भी 70-80 kg अपना प्रीवियस वेट मेंटेन कर सकता है। तो हाउ फिजिकली यू आर एक्टिव, हाउ मेंटली यू आर एक्टिव, व्हाट इज़ योर जॉब प्रोफाइल, व्हाट इज़ योर वर्किंग प्रोफाइल, आप चलते कैसे हैं, यानी लाइफस्टाइल में सिर्फ डाइट चार्ट नहीं देखा जाता है, आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, ईच एंड एवरीथिंग काउंट्स। और ये पब्लिक को नहीं पता। इसलिए कोई कहता है, जैसे ही आप किसी से पूछेंगे आप अपना वेट नॉर्मल रखिए, तो वो ये कहता है मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा,
जबकि आपके सामने कैनाल रोड है, सूरत का बहुत ही खूबसूरत कैनाल रोड। आप जाके देखिए, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सालों से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं पर अभी भी नॉर्मल वेट पे नहीं है। कई लोग आपको अलग अलग एक्सरसाइज फॉर्मेट करते हुए मिलेंगे। कोई आपको क्रिकेट खेलता हुआ मिलेगा पर स्टिल ही इज ओवरवेट, कोई बैडमिंटन खेलता हुआ मिलेगा, वॉलीबॉल खेलता हुआ अभी मिलेगा, पिकल still बॉल आ गया। पिकल बॉल आ गया। हम वेट लॉस को एक्सरसाइज में ढूंढते हैं तो ये हमारी गलती है। और इस चीज़ को समझाने के लिए एक टीचर डेवलप हुआ था आज के 3 साल पहले, दैट वाज कोविड। कोविड ने सबको समझाया है कि अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करिए। कोविड से बड़ा कोई टीचर नहीं है। जो लोग अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे वो घर पे रह के भी 1.5 साल बाद, जब 1.5 ईयर के बाद जब घर से बाहर निकले तो भी उनका वेट नॉर्मल था। और जो लोग डाइट चार्ट और एक्सरसाइज के प्लेयर थे वो सब ओवरवेट हो चुके थे। तो मैं कई बार अपने पोइट्री स्टाइल में ये बात बोलता हूँ कि वेट लॉस एक ऊंची इमारत की तरह, वेट लॉस या फिटनेस एक ऊंची इमारत की तरह है जिसमें डाइट और एक्सरसाइज की लिफ्ट तेजी से ऊपर लेके जाती है, पर हेल्दी लाइफस्टाइल एक सीढ़ियों की तरह जो सिर्फ इमरजेंसी में नहीं, जिंदगी भर आपका साथ निभाती है। नाइस, बहुत। तो करेक्ट योर लाइफस्टाइल फर्स्ट। एक्सरसाइज ऑफ कोर्स वी डू रिकमेंड, हम भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज तो करनी है, पर ऐसा नहीं है कि फिट रहने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी है। पहले अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज का नंबर आता है। तो लाइफस्टाइल कम्स फर्स्ट। लाइफस्टाइल में 5 चीजें जो आपने बताई सब अकाउंट, ये पांचों एलिमेंट जब कंप्लीट हो जाते हैं देन आप ये कह सकते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। बहुत डीप लर्निंग मेरे को भी मालूम पड़ी और आई होप सबको जो देख रहे हैं उनको भी मालूम पड़ेगी। इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझाने की कोशिश की, होप ऑडियंस विल लाइक इट। या सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन इन अचीविंग अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ? Of course, 101% nutrition is important. What we are, exactly what we eat. हम क्या हैं? हम जो खाते हैं वही हैं। हमारे पुराने आयुर्वेद में और हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल सिस्टम में भोजन को, फूड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तामसिक एंड सात्विक। यदि हम हर वक्त तामसिक खाना, तेज मसालेदार खाना खाते हैं और नॉनवेज ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी सोच, हमारी फिजिकलिटी, हमारी बॉडी का पूरा सेगमेंट पूरा तामसिक हो जाता है। हमें एंगर ज़्यादा आता है, गुस्से, इमोशंस, हमारी फिजिकल, मतलब हमारे ब्रेन भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तामसिक। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा आपको। और यदि आप सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक खाना यानी नेचुरल फूड्स, प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें क्या दिया? नेचर ने हमें 7 चीज़ें दी है जो कि बड़ी नेचुरल है, बहुत क्लियरली, जिससे वैसे तो बहुत कुछ खाने को मिला है नेचर से, पर ये 7 चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तो आप किसी को डैमेज नहीं कर रहे। तो वो क्या है? फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल, दूध, दही, पानी, ड्राई फ्रूट्स। इंसान कितना भी स्मार्ट समझे अपने आप को, हर चीज़ में मिलावट की है, ड्राई फ्रूट में आज तक नहीं कर पाए। नहीं हो भाई, ड्राई फ्रूट में क्या, कैसे कर दोगे आप? एनीबडी कैन आइडेंटिफाई ये नकली काजू है, एनी डैम पर्सन, उसे कोई क्वालिटी टेस्ट की जरूरत नहीं। नेचर ने जो चीज़ें दी हैं उसमें आप मिलावट तुरंत अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यदि आप अपने आप को नेचुरली हेल्दी रखना चाहते हैं तो पहले नेचर के नज़दीक आइए। यदि आपको नेचुरल ब्यूटी चाहिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ फूड के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आपकी जो जनरेशन है, कोई पपीता गालों पे लगा रहा है, कोई कुछ गालों पे लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। एक सिंपल सी थ्योरी मैं बताता हूँ, हम चेहरे पे वही चीज़ लगा सकते हैं जो खा सकते हैं। अच्छा, ओके, हम चेहरे पे वही चीज़ लगा सकते हैं जो खा सकते हैं। जो खाते हैं उनको वो लगाते नहीं, और जो लगाते हैं वो खाते नहीं। यदि कोई चेहरे पे पपीता लगाता है तो उसको अपने पास बुलाइए और उससे पूछिए कभी खाया है? तो कहेगा ना, बात खत्म। तो आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप पुराने सिस्टम को समझेंगे तो जो चीज़ें यदि हम हेल्दी ईटिंग है तो वो हेल्दी ईटिंग हमारे चेहरे पे, बॉडी पे रिफ्लेक्ट होती है, वो अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। मैं कई बार सिंपल लैंग्वेज में अपने पेशेंट्स को भी गाइड करता हूँ, पेट खराब, चेहरा खराब, पेट साफ, चेहरा साफ। यदि आपका चेहरा यदि ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ग्लो नहीं कर रहा है। आपने डाइट में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं जो बॉडी आपको हिंट दे रही है, आप समझो इट्स नॉट गुड फॉर यू, पर हम उसे समझना नहीं चाहते, तो फिर वो किसी न किसी डिजीज फॉर्मेट में बाहर निकलता है। सर, बॉडी में 11 सिस्टम्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11 ग्रॉसली बात करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
न्यूरोलॉजी सिस्टम, स्किन, आप डिपार्टमेंट वाइज बात कर सकते हैं, पर आप ओवरऑल भी बात करेंगे तो भी चलेगा। हम जो बात करेंगे वो सारे सिस्टम पे अप्लाई होती है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो आप जाएंगे। एक एक करके ऑडियंस को कैन यू टेल दैट हाउ टू बैलेंस सिस्टम को कैसे अच्छा रखना है। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो मैंने आपको 5 एलिमेंट बताया ना, वो सारे सिस्टम को कवर करते हैं। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल। हेल्दी ईटिंग पे बात करी तो हेल्दी ईटिंग डजंट मीन यू शुड फॉलो द डाइट चार्ट, यू शुड फॉलो द नेचर। एग्जांपल, गुड़ की चीज़ें जो होती है हम कभी भी खाते हैं, पर आप एक बार गुड़ को स्टोर करके देखिए इस सीज़न के अंदर, जैगरी इस सीज़न में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो सूरत का सीज़न, सूरत का क्लाइमेट हमें क्या कहता है कि इस सीज़न में मत खाइए। और विंटर में गुड़ की चीज़ें, तिल की चीज़ें, गोंद की चीज़ें, काफ़ी ऐसे एलिमेंट हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, लोग बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। तो ऑडियंस को ये चीज़ समझना चाहिए, जब नेचर ही जिस एलिमेंट को स्वीकार नहीं कर रहा है हमें नहीं खाना चाहिए, तो हमें नहीं खाना चाहिए। तो कुछ डाइट फैक्टर्स, डाइट सेगमेंट, कुछ एलिमेंट, फूड एलिमेंट ऐसे हैं वो विंटर के लिए ही बने। आप उसके साथ ज़्यादा होशियारी करेंगे, आप सोचेंगे कि हमारे पास स्टोरेज सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को पता था कि इन फ्रूट्स में विटामिन सी, डी, जिंक होता है, फिर भी अल्टीमेटली उन्हें टैबलेट से ही लेना पड़ा कोविड के दौरान। वाई? क्योंकि एक फ्रेश फ्रूट को खाना और एक स्टोर्ड फ्रूट को 1 साल बाद खाने में डिफरेंस था, डिफरेंस है और डिफरेंस रहेगा। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, पर 1 साल बाद जब आप उस एप्पल को यूज करेंगे तो उसका टेस्ट मेंटेन हो सकता है पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम न्यूट्रिशनल क्वालिटी 1 साल बाद भी आपको मेंटेन करे। और यदि ये बात करेक्ट होती तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, वो तो सारे एलिमेंट्स स्टोर करके बैठे हुए हैं, फिर भी उनको आर्टिफिशियली इन दी फॉर्म ऑफ टैबलेट क्यों लेने पड़े? उनके पास तो पूरा स्टोरेज था। न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं रहती है। आज भी जो लोग फ्रेश फ्रूट खाते हैं, जिनके पास, जो लकी हैं, आई शुड कॉल देम सुपर लकी पर्सन्स, जिनके पास में बागान है, बगीचे हैं, फ्रूट्स उनके घर में लगते हैं और ऑर्गेनिक उन्हें खाने को मिलता है। ऑर्गेनिक मीन्स प्योर, वो जैसा है वैसा, तो वो लकी हैं। और उनसे पूछिए गाय का प्योर दूध खाना, प्योर दूध पीना क्या होता है, शुद्ध दही खाना क्या होता है, आपको उनकी बॉडी के ग्लो से वो रिफ्लेक्शन पता चल जाएगा, जो लोग नेचुरल एलिमेंट यूज़ करते हैं। बाकी तो सिर्फ एक कहावत है, मुहावरे हैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक तो वास्तव में किसी को मिलता ही नहीं है। सर इसके ऊपर आपकी कोई पोयम या स्टोरी आपने बनाई है क्या? किसके ऊपर? ये हेल्दी न्यूट्रिशन और फूड। न्यूट्रिशन पे ऑफ कोर्स बच्चों के लिए जो मैंने बनाई है वो मैं जरूर सुना के ही कंक्लूड करूंगा। पर पहले आपको एक बार ब्रेक ले लेते। सर, how can individuals proactively manage their health to prevent chronic diseases? Okay. मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पहले रिप्लाई किया वो बार बार हर क्वेश्चन में एंटर करेगा। हाँ, हमारे 5 फैक्टर्स हैं। यस, वन बाय वन अब अलग तरीके से एलेबोरेट करते हैं। सपोज वी टॉक अबाउट हेल्दी न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का एक ही रूल है, फॉलो द नेचर। नेचर में लोगों ने अपने आप को लिमिट कर दिया है डाइटरी एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल, मैं जो बच्चों में बिहेवियर देखता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, तो क्या भिंडी की सब्जी सर्वगुण संपन्न है? नहीं। वाई दे आर स्ट्रिक्ट देम टू वन वेजिटेबल ओनली? टेस्ट। तो जब आप टेस्ट की सुनते हैं तो आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं, और जब आप नेचर की सुनेंगे तो नेचर आपके सारे एलिमेंट देगा। जब कोई भी आपको इस प्रकार की बात करता है, जब कोई भी इस प्रकार की बात करता है कि यू शुड ईट चिया सीड्स, दे ऑल प्रोवाइड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज स्टिल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। पर हम उन पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उसमें कुछ नयापन नहीं लग रहा है। हम डिस्कशन किस बात पे करना चाह रहे हैं? हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पे, चिया सीड्स पे, अलग अलग प्रकार के सीड्स, रेयर एलिमेंट्स, जो यदि आप ना भी खाएं तो उतना ग्रॉस फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर कुछ नया, कुछ अनूठा, कुछ अलग सुनना और फॉलो करने के चक्कर में हमने सोशल मीडिया पे उन रील्स को, उन प्रोडक्ट को ज़्यादा वेटेज दे दी है जिनको देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एग्जांपल, आप डाइटरी प्लान नेचर के हिसाब से कैसे होना चाहिए, सीजन वाइज आप बता सकते हैं? मुझे अक्सर ये कहा जाता है, सर एक कोई ऐसा चार्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो मैं आज आपने पूछ ही लिया ऑडियंस के सामने, तो मैं आपके सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। और यदि ये आप ध्यान से सुनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी डाइट चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 1 प्लेट फ्रूट, 1 प्लेट सलाद, बड़ा बाउल सब्जी, 2 ग्लास दूध, 1 कटोरी दही, 12 ग्लास पानी, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट,
आधे घंटे की एक्सरसाइज और 7 घंटे की नींद और एक हॉबी, दिस इज द कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थी लाइफस्टाइल चार्ट फॉर ईच एंड एवरी वन इन इंडिया, नॉट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। World. यदि ये 10 एलिमेंट इसमें यदि आप सबको यदि कंसिडर करेंगे, यदि आप फ्रूट पे बात करते हैं तो विटामिन मिल जाते हैं। अब ग्रॉसली बात कर लेते हैं, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों बोला है। एक प्लेट फ्रूट खाने से आपको मल्टी विटामिन सारे मिल जाते हैं। सैलेड खाने से आपको पूरा फाइबर मिलता है, आपके गट को इम्यून कर देता है, गट को हेल्दी बना देता है। 10 ग्लास पानी, 12 ग्लास पानी, ये आपकी बॉडी के नॉर्मल कंडीशनिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। 2 ग्लास दूध, दूध पीना ही चाहिए। एक वेजिटेरियन यदि दूध नहीं पिएगा तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई कहाँ से आएंगे, B12 कहाँ से आएगा। तो वेजिटेरियंस को तो दूध पीना जरूरी है। सॉरी टू से आपकी जनरेशन में एक वेगन्स करके बड़ा ग्रुप डेवलप हो गया है। बंद उन्हें दूध, उस दूध पे या उस मिल्क की क्वालिटी पे अटेम्प्ट करना था जिसमें एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, पर उन्होंने तो ओवरऑल दूध को ही ब्लेम कर दिया। एक वेजिटेरियन यदि दूध नहीं लेगा तो डेफिनेटली 4 बड़े ऐसे ग्रॉस एलिमेंट जो हमारी मसल एंड बोन हेल्थ के लिए जरूरी है वो उसकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएंगे। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जब आप लेते हैं तो वो कैलोरी वाइज भी बहुत हाई होते हैं ना, वो कैल्शियम देते हैं, प्रोटीन देते हैं, विटामिन ट्रेस एलिमेंट भी देते हैं, पर वो कैलोरी वाइज बहुत हाई होते हैं। फिर आपका शुगर भी शूट करेगा, फिर आपका लिपिड प्रोफाइल भी खराब होगा। तो लोग नहीं समझ रहे हैं कि सब कुछ, आप यदि वेगन हैं तो इस डजंट मीन कि आप दूध नहीं पी सकते हैं, आपको दूध पीना चाहिए। प्रॉब्लम दूध में नहीं है, आई रिपीट, प्रॉब्लम दूध में नहीं है, दूध पीने के तरीके और दूध पीने की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दूध बदनाम हुआ है। सर फूड से मेरे को एक और चीज़ लिंक हुई, सॉल्ट का भी इसमें कोई रूल होता है क्या? यदि आप सॉल्ट पे क्वेश्चन रेज करते हैं तो जब हम अच्छी मेहनत करते हैं, जब हम सीधी भाषा में जब हम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई चीज़ मन से करते हैं, तो जब मन से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली स्वेट रिलीज करती है, पसीना छोड़ती है। तो जब हम पसीना छोड़ते हैं तो उसमें हमारा सॉल्ट रिलीज होता है। हाँ। ओके, जब बॉडी सोडियम रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, तो बॉडी नेचुरली डिमांड करती है सोडियम। तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, जो आप खाएंगे वो आपको अच्छा लगेगा। पर इट्स वेरी सॉरी टू से, हमारे महानगरों में, हमारी मेट्रो सिटीज़ में जो कल्चर चल रहा है वो ये चल रहा है कि लोग अपनी वॉच देख के खाना खाते हैं। चलो 8 बज गए खाना खा लेते हैं, चलो 9 बज गए खाना खा लेते हैं। उन्हें पहले अपने आप से पूछना चाहिए क्या भूख है। जिस दिन वो अपने दिल की और अपनी बॉडी की सुनेंगे, अंदर से बॉडी सिग्नल देगी कि जो आप उस समय खा रहे हैं आपकी बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही है। और जब बॉडी को आप डिमांड से ज़्यादा देंगे तो बॉडी स्टोर करेगी। सपोज कोई जेंटलमैन है जो शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स का उनका काम है, वो सपोज ये समझिए ना कि वो फॉर एग्जांपल डेनिम पैंट्स और जीन्स वगैरह बनाते हैं, टी शर्ट्स बनाते हैं। उन्होंने मुझे 10 जीन्स और 10 टी शर्ट गिफ्ट कर दिए। बोला सर आपके लिए, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, आप ले लीजिए। मैंने उनका मान सम्मान रखने के लिए गिफ्ट ले लिया, पर मैं तो जीन्स पहनता ही नहीं। एग्जाम्पल, मैं पहनता हूँ, ऑफ कोर्स पहनता हूँ, पर मैं सपोज एग्जाम्पल समझिए मैं जीन्स पहनता ही नहीं हूँ, तो मैं घर पे जाके क्या करूँगा, उसको स्टोर कर दूंगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहूँगा, उनको मना नहीं करना चाहूँगा। तो बॉडी भी बिल्कुल वैसा ही करती है। लेडीज़ में हिप्स पोर्शन एंड मेल्स में एब्डोमेन पोर्शन अपने आप स्टोरेज ऑर्गन है हमारे। आप इसको चाहे जितना एक्सपांड कर सकते हैं, आप सूमो पहलवान बन सकते हैं। नेचर ने दी है ये पावर। अब आपको इस पावर को यूज करना है कि फिट रहने के लिए अपनी पावर को यूज करना है, इट्स अप टू यू। पर अफसोस इस बात का है, हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बॉडी को वो एलिमेंट देते हैं जो बॉडी को चाहिए नहीं, तो बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। हाँ। तो न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनडायरेक्टली। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। न्यूट्रिशन में टाइमिंग और च्यूइंग बहुत जबरदस्त रोल है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि खाना खाना नहीं चाहिए, खाना पीना चाहिए। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है खाना इतना चबाइए कि वो पानी की तरह नीचे जाए। हाँ। पर यू पीपल आर सो बिजी, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है इतना। गल्प कर देते हैं। आप सीधा आप निगलते हो, आप तो सारा लोड स्टमक पर ही डाल देते हो। तो जब हम स्टमक पर सारा लोड डालते हैं तो हमारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, वो उसके डाइजेशन, प्रोटीन हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डाइट है, उसके डाइजेशन खराब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का उतना खराब नहीं होता जितना प्रोटीन का डाइजेशन खराब होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोटीन को यदि आप अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं बॉडी के लिए, तो अपने खाने को पीजिए, यानी जितने दांत उतनी बार चबाइए। पुराने लोग बोला करते थे। पर आपकी जो मॉडर्न जनरेशन है वो तो इस चीज़ों को वैल्यू ही नहीं करती है।
तो सीधी भाषा में हमें कम से कम अपना नॉर्मल मील यानी लंच और डिनर मेजर मील जो हम लेते हैं तो उसमें हमें 12 to 15 मिनट्स लगने ही चाहिए। इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि आप खाने को अच्छे से चबा के यूज़ करें। और टाइमिंग सर, डिनर ब्रेकफास्ट टाइमिंग यदि हम इंडियन सिस्टम को फॉलो करें तो मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, और कई बार हम हंसी मजाक में अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि जिसने डिनर के मजे लिए तो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी उसके मजे लेगी। व्हाट डज इट मीन इन अ नटशेल, इन अ सिंपल वे, रात के खाने के मजे लेना बंद करिए। आपको यदि अपना लगता है कि मैं अपनी चॉइस का फूड खाऊं, मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, होटल में जाऊं, कुछ अच्छा खाऊं, कुछ बेहतर खाऊं, कुछ अलग खाऊं, तो ये सारी बदमाशियां, ये सारी हॉबीज, हैबिट्स ये आप लंच पे शिफ्ट कर दीजिए। रात को जितना बैलेंस कर सकते हैं उतना कर लीजिए। डिनर जितना बैलेंस होगा, कंट्रोल्ड होगा, आपकी लाइफ उतनी बैलेंस्ड होगी। ओके, तो डिनर में सैलेड, सूप्स, ये सब? नो, मेरा एक मुहावरा है कि तीखा खट्टा चाय कॉफी फ्रूट सलाद और दही। आई रिपीट, तीखा खट्टा चाय कॉफी फ्रूट सलाद और दही। दादा दादी कहते थक गए रात के आइटम नहीं, ये रात में नहीं खाने चाहिए। ये रात को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड है। रात को हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो सिंपल एंड इजी टू डाइजेस्ट हो, जैसे खिचड़ी, दाल चावल, पोहा, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, दूध दलिया। बहुत लाइट आइटम है, आप ढूंढना चाहेंगे तो बहुत मिलेंगे। इंडिया सच अ बिग कंट्री इज हैविंग सच अ लॉट्स ऑफ वैराइटीज इन अ फूड। और इतना जितना ज़्यादा हम फैंसी फूड करेंगे ना, हम खुद कंफ्यूज होते जाएंगे। आप बेसिक्स पे रहिए, बेसिक को फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा। यस यस यस। सर, दो चीज़ें, अब बस दो क्वेश्चन और है मेरे पास। फर्स्ट इज योर फाइनल एडवाइस टू ऑल द लिसनर्स फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ टू क्रिएट अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। पहला क्वेश्चन। सेकंड, आपकी जनरेशन को तो मुझे कुछ मैसेज देना ही पड़ेगा, और मैं ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपकी पावर की वैल्यू मैं आपके ऑडियंस और व्यूअर्स के सामने रखना चाहूँगा। हमारे सूरत शहर में एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल हुआ करता था, वो था लग गया उसके पीछे। जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं वो भी सुन रहे होंगे, आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुनेंगे। उस फेस्टिवल का नाम है उत्तरायण। अच्छा, अब मैंने था वर्ड यूज़ क्यों किया है, उसके पीछे एक बहुत गहरी साइंस है। जब कोई पतंग चकाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, यहाँ चकाना बोलते हैं, बाकी नॉर्थ इंडिया में उसको पतंग उड़ाना बोलते हैं। जब कोई पतंग उड़ाता है तो वो इस इंटेंशन के साथ कभी नहीं उड़ाता है कि मुझे पक्षियों को मारना है। उसका एक सिंपल वे होता है कि आज इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, मुझे इसकी पतंग काटनी है, मुझे फेस्टिवल को एंजॉय करना है। गलती क्या हो गई? गलती गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने धागे की क्वालिटी को चेक नहीं किया। जो धागा हाथ से ही नहीं टूटता है तो वो तो गला ही काटेगा। पहले तो वो धागा इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के यान आते हैं, सभी तरह के यान मिल जाते हैं लोगों को, उसके ऊपर वो फिर कांच लगा देते हैं। जो धागा हाथ से नहीं टूटता है तो वो तो पक्षी क्या, वो तो इंसानों के गले काटता है। हर बार कितनी इमरजेंसीज होती है वहाँ पर, एज ए डॉक्टर हमसे पूछिए। बिल्कुल लोग लहू लुहान होकर हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि जो उसके धागे गिर जाते हैं रोड पे। तो अब इसको रोकने के लिए लोगों ने क्या किया, कुछ एनजीओज ने गलत प्रोपेगेंडा चला दिया कि पतंग ही मत उड़ाओ। रोकना क्या था, रोका क्या? उनको जाके ये गवर्नमेंट से हेल्प लेनी चाहिए थी कि किसी तरीके से इस चाइनीज धागे को रोका जाए। उन्होंने चाइनीज धागे को नहीं रोका, उत्तरायण को ही रोक दिया। उन्होंने उत्तरायण को रोक दिया। और आज सूरत का पूरा फेस्टिवल दो भागों में बढ़ चुका है। एक है हमारा जो अडाजन वाला एरिया है, पुराना सूरत शहर बोलते हैं, वहाँ आज भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, और इस वाले पूरे सेगमेंट में पतंग का पतन हो चुका है। तो यदि जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में जिन्होंने पतंग उड़ाना छोड़ दिए, मैं खुद शौकीन हूँ, मैं तो खुद उड़ाता हूँ, मुझे बहुत शौक है, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म की मदद से, पतंग उड़ाइए, पर धागा हमारे लोकल इंडिया का अलग अलग जो सिटीज़ का धागा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, बीकानेर का, बरेली का, जयपुर का, इनके धागे बहुत अच्छे हैं। आप इनको उड़ाइए, कोई पक्षी नहीं मरेगा, कोई पक्षी नहीं मरेगा। वो धागा टूट जाएगा, यदि फंस भी गया कोई गलती से पक्षी, तो वो उसको तोड़ के निकल जाएगा, आपकी पतंग टूट जाएगी, पर पक्षी को नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे आप वापस ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके मेन एडवाइस से? मेन एडवाइस ये है कि कभी भी जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो पूरा रूट कॉज पर जाइए। गलती क्या हो रही है, आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो चुके हैं। रातों रात करोड़पति बनने की चाहत, आप सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करते हैं ये डिसाइड करेगी आपका यूथ की आपको क्या सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको इस सी में
डाइविंग करनी है और वहाँ से एक ऑक्टोपस पकड़ के लेके आना है। ओके। पर मैंने जब आपके बाद 3 घंटे बाद आपसे कांटेक्ट किया कि अनंत आप क्या ढूंढ रहे हो, तो बोले सर बहुत अच्छे अच्छे पर्ल्स मिल रहे हैं। पर मैंने आपको क्या ढूंढने के लिए भेजा था? ऑक्टोपस। मैंने तो बोला था एक छोटा सा ऑक्टोपस का बेबी ऑक्टोपस आप लेके आइए, पर आप तो पर्ल में खो गए। यही सोशल मीडिया के ज़माने में हो रहा है। लोग जब मोबाइल अपना स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, वो नहीं समझ रहे कि हमें क्या देखने के लिए हम सोशल मीडिया हमने हाथ में लिया है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 6.5 आवर्स, 6.5 घंटे हम लोग सोशल मीडिया पे बैठता है एक एवरेज इंडियन, एक आम भारतीय है 6.5 से 7 घंटे। ये अभी रिसेंट रिपोर्ट है। यानी इतना टाइम हम अपनी इतनी एनर्जी हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, एंड व्हाट वी आर गेनिंग नथिंग। तो जो रातों रात हमारी जो एक्सपेक्टेशन कैरियर में बनने की है, आप यदि सोशल मीडिया का सही यूज़ करेंगे तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, बच्चा किसी भी फैकल्टी का हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, मैथ्स का हो, आर्ट्स का हो, इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च्ड हैं। आप उनका यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। पर आप करने कुछ जा रहे थे और कर कुछ और रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक समुद्र में गोता लगा चुके हैं, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। रील्स, मीम्स, एंटरटेनमेंट काम के Yes. नहीं है ज़्यादा। आपको लिमिट करना ही पड़ेगा। जैसे मैं कई बार अक्सर बोलता हूँ कि फास्टिंग, जैसे हम लोग फिजिकल हेल्थ के लिए भी मंथ में एक बार फास्टिंग एडवाइस करते हैं, हाफ डे फास्टिंग वीक में एक बार एडवाइस करते हैं, तो नाउ इट्स अ टाइम फॉर द डिजिटल फास्टिंग। अब समय आ गया है कि आपको मोबाइल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्विच ऑफ करना चाहिए, बिकॉज मोबाइल इज प्लेइंग विथ योर ब्रेन। हाउ? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और आपकी इस पूरी जनरेशन को सुनना चाहिए। सपोज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन अ मूवी ऑफ टाइगर श्रॉफ, एंड फॉर एग्जांपल मुझे अच्छा लगता है टाइगर श्रॉफ को देखना। तो यदि किसी मूवी की बात होती है और मुझे पता चलता है सिंघम अगेन इज बीइंग रिलीज्ड होने जा रही है और मुझे टाइगर श्रॉफ की मूवी देखनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो ऐड। मैं उसको हो सकता है 2 बार भी देखूं, 3 बार भी देखूं, बिकॉज आई लाइक टाइगर। लाइकवाइज सोशल मीडिया और एआई आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। तो इस वजह से जब आप एक बार आप मोबाइल उठाते हैं और अब जब उस पर रील्स आप फोकस करते हैं, तो वो वही रील्स देता है जो आपके ब्रेन को एक्साइट करता है, ओवर एक्टिव करता है। तो ये ओवर एक्टिवेटेड ब्रेन फिर बाद में जब सोता नहीं है तो आप स्लीपिंग पिल्स ढूंढते हैं, फिर आप मेडिटेशन करने पे जाते हैं। फिर ये वही वाली बात है, आपने अपने ब्रेन को इतना ओवर एक्टिव किया ही क्यों कि उसको काम करने के लिए आपको इतने सारे मेडिटेशन का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। तो आज के 15-20 ईयर्स पहले ये चीज़ें ट्रेंड में नहीं थी। तो उसका रीज़न एक था, क्लियर था, कि लोग अपने ब्रेन को कैलकुलेटेड यूज़ करते थे और उस समय इतने कंफ्यूजिंग गैजेट्स भी नहीं थे। एक होता है गैजेट्स का साइंटिफिक एंड अच्छा यूज़ करना, एक हो सकता है उसका बैड यूज़ करना। तो व्हाट पीपल आर यूजिंग, उसका बैड पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपकी जनरेशन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रॉपरली सोशल मीडिया को और ये सोशल मीडिया के थ्रू जो नॉलेज आती है उसको एक लिमिट तक यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें। मतलब हमें प्रिवेंट करना चाहिए प्रॉब्लम, ना कि प्रॉब्लम होने के बाद उसका सल्यूशन ढूंढना चाहिए। यस, इसको हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में परफ्यूम थेरेपी बोलते हैं। यहाँ एक गंदा गीला कचरा पड़ा हुआ है और आप मुझे वैरायटी ऑफ कंट्री के अलग अलग परफ्यूम्स दिखा रहे हैं। सर ये दिस इज फ्रॉम दुबई, दिस इज फ्रॉम सिंगापुर, ये फ्रॉम लोकल सूरत ओनली। आप मुझे कह रहे हैं कि आप इस परफ्यूम को यूज़ करिए, जबकि मैं ये कह रहा हूँ जब तक वो गंदा गीला डर्ट कचरा हटेगा नहीं तो परफ्यूम क्या काम करेगा। तो इसलिए व्हाट माय सिंपल थ्योरी, आप रूट कॉज पर अटैक करिए, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। सर थोड़ी सी स्टोरीज और पोएम सुना दीजिए ऑडियंस को, मैंने सुनी थी। आपकी जनरेशन को टारगेट करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स, यानी मैं मॉम और टीचर को एक साथ टारगेट करते हुए मेरी एक कविता है कि ठीक करेंगे डॉक्टर पाराशर। ठीक करेंगे डॉक्टर पाराशर का इनडायरेक्टली कविता में मैंने इंडियन मॉम्स की सारी बैड हैबिट्स को कवर किया। तो वो मैं आपको कविता के माध्यम से रखता हूँ। पूरी कविता तो शायद टाइम लिमिट क्रॉस हो रही है, तो जल्दी से हो जाएगा। शॉर्ट में बात करते हैं कि इस खुद से ज़्यादा बैग का वज़न ये कैसा इंसाफ है। खुद से ज़्यादा बैग का वज़न ये कैसा इंसाफ है। क्लास वर्क से ज़्यादा होमवर्क दिखता सबको साफ है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बैलेंस को करो राइट। ये मैं टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ। एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बैलेंस को करो राइट। सिर्फ किताबें पढ़ने से न पर्सनालिटी बढ़ेगी न हाइट। आपको फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। नाउ द मदर्स के लिए स्कूल हॉस्टल और फूड की हाई फाई फीस तो आप पे कर दोगे। स्कूल हॉस्टल और फूड की हाई फाई फीस तो आप
पे कर दोगे, पर पैशन, एम्बिशन, डेडिकेशन और मोटिवेशन कहाँ से खरीदोगे? अरे खुद का बच्चा पढ़ता नहीं तो नंबर कहाँ से लाएगा? टीचर को आंख दिखाने से कौन सा टॉपर बन जाएगा? माँ ही पहली टीचर होती, ये गांठ बांध लो दिल पर। माँ ही पहली टीचर होती, ये गांठ बांध लो दिल पर। ये भूले तो याद दिलाने फिर से आएंगे डॉक्टर पाराशर। नाइस सर। दिस इज सम लाइन्स ऑफ माय कविता, ठीक करेंगे डॉक्टर पाराशर। ठीक करेंगे। आपने बुक लिखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पार्क ऑफ लाइफ एंड हेड टू टो। व्हाट इज एक्चुअली माय वाइफ गॉट ब्रेस्ट कैंसर इन 2020। ओके। सो जब उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो मुझे एक डॉक्टर की हैसियत से ये पता चला कि मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी अच्छे एक्सपर्ट्स हमें टेक्निकली गाइडेंस सही समय पर ना दे पाए। तो तब माय वाइफ डिसाइडेड कि मुझे अब सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना है कि जो मेरे साथ हुआ, जो गाइडेंस में कमी रही, वो बाकी लेडीज़ को ना हो। तो अवेयरनेस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इसी अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ग्रुप ने मुझे इंस्पायर किया। तो मैंने एक अवेयरनेस पे बुक लिखी जिसका नाम है स्पार्क ऑफ लाइफ, और इसी जर्नी में हमने सेकंड बुक रिसेंटली लॉन्च की थी, इसी वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2024 को, जिसका नाम है हेड टू टो। हेड टू टो मीन्स 100 हैबिट दैट कीप्स यू अवे फ्रॉम डिजीज, ड्रग एंड डॉक्टर्स। तो ये इसी जर्नी का पार्ट है, टू मेक हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया। ये बुक मैंने लिखी। सर, तो ये बुक हमने जो डिस्कस के टॉपिक्स मोर और लेस उसके बारे में बिल्कुल, आपको ये सारी बातें और ज़्यादा एलाबोरेटेड एंड एक्सप्लेन्ड वे में उस बुक में मिल सकती है। ओके, तो आई वुड रिकमेंड सर ने जो बुक लिखी है। थैंक यू सो मच फॉर योर जेन्युइन रिकमेंडेशन। थैंक यू सर फॉर योर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच। इट वाज ग्रेट to talk to you and thank you for your valuable time. आपने समय निकाला evening में। Even I am thankful to you that you chose me to speak upon preventive health care. Otherwise मुझे ऐसा लगता था पूरा वर्ल्ड शायद ट्रीटमेंट केयर पर ही चला जाएगा, प्रिवेंशन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। And I always love to speak upon preventive health care and root cause of the disease. Thank you so much for calling me as a speaker. Welcome sir. Thank you.